Sources, energy sources are basically divided into two types. These types are voltage sources and the current sources. Voltage sources बाद में divide हुए हैं independent voltage source and the dependent voltage source में. Current source again divide हुआ है independent current source and the dependent current source में. As per our syllabus हमें सिर्फ देखना है independent sources, that means independent voltage source and the independent current source. So independent voltage source again divide हुआ है is ideal voltage source, practical voltage source, and independent current source again divide हुआ है ideal current source में and the practical current source में. So detail में हम ideal voltage source, practical voltage source, ideal current source and the practical current source हम देखेंगे. Ideal voltage source and the practical voltage source basically इन दोनों में difference क्या है? Suppose हमने consider किया internal resistance for the voltage source. Then it is a practical voltage source. So here it is in voltage V and it is a RS. RS is the source resistance. That means the internal resistance of the voltage source. Okay. And suppose हम consider नहीं करते कि voltage source का internal resistance नहीं है, ठीक है? So it is an ideal condition. But practically it is not possible. Ideal condition is not possible. But so for solving some problems, we are considering the ideal condition. So see here. फर्स्टली हम देखेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है. सो दिस इज सिंपल फॉर द आइडियल वोल्टेज सोर्स इज अ वोल्टेज वी, सोर्स वोल्टेज वी, and the second terminal voltage we are considering without load. So this is the load resistance RL which is not connected to the voltage V. So if it is not connected, so load current will be zero. And in one condition we are considering the load resistance with the voltage source V. So if it is a circuit completed, then the voltage through the voltage V, the current IL will flow. So in this, see here, in both the conditions, suppose we are not applying the resistance or a load resistance across the voltage. So this voltage source will directly appear across the load resistance or this across the two terminals. And when we are connecting a load resistance across the voltage, so this voltage again going directly to the load resistance. So there is no change in the load resistance. So the input voltage directly जा रहा है load resistance के across, ठीक है? So उसका ग्राफ कैसे आएगा? So suppose we are drawing a graph, terminal voltage across the load current. So this is the load voltage V or input voltage V. So V voltage will directly appear across the load. So VL is nothing but a low voltage, and we are getting load voltage is equal to V as it is, which we are giving to the input. So there is no change at the output. Okay. So as we are increasing the current, load resistance will decrease. Okay. So this is basically the graph for the ideal voltage source. Then second one is the practical voltage source. प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में मैंने बोला था हम क्या कंसीडर कर रहे हैं. इन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स वी आर कंसीडरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स एंड इट इज प्रैक्टिकली देयर. इंटरनल रेजिस्टेंस इज देयर. वी हैव टू कंसीडर द इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर द वोल्टेज सोर्स. So suppose this is the symbol for the practical voltage source. Then suppose here we are not connecting a load resistance. It is not connected. It is not connected here. Load resistance is not connected. Okay. So see here, if these two terminals are open circuited, so no current will flow to the load. Okay. So IL is equal to 0. We are considering. So in this case, we are getting this voltage as it is to the load. Because if the current flowing through this resistance is 0, so there is a zero voltage across the RS if it is not flowing the current. Okay. So there is no voltage across the RS. So this voltage will directly appear across these two terminals. Then the second condition is we are considering here the load resistance. यहाँ पे हमने load resistance consider किया हुआ है. So current will flow. So इसमें क्या होगा? Some voltage will drop across the इंटरनल रेजिस्टेंस. सो यहाँ पे कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पे फाइनली वोल्टेज ड्रॉप हमें मिलेगा. बट अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है. दैट मींस दिस इज द टोटल वोल्टेज. सम वोल्टेज गेट ड्रॉप हियर, सो रिमेनिंग विल बी हियर. सो द टोटल आउटपुट व्हिच वी आर गेटिंग इट विल बी लेस देन द टोटल वोल्टेज. सो द लोड वोल्टेज VL इज लेस देन द टोटल वोल्टेज. सो ग्राफ में क्या होगा? यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं डिक्रीज लोड. सो लोड डिक्रीज हो रहा है, मतलब इन बोथ द कंडीशंस वी आर कंसीडरिंग द डिक्रीज लोड. ओके. सो इफ द लोड इज डिक्रीजिंग, सो लोड डिक्रीज हुआ मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज होगा. सो यहाँ पे
वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज हुआ, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. सो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज हो रहा है एज द लोड रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग. सो यहाँ पे इसकी वजह से हमें जो वोल्टेज है, वोल्टेज हमें मिल रहा है डिकेइंग, इट इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली. सो दिस इज बेसिकली द ग्राफ. इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज डिवाइड हुए हैं दो टाइप्स में. वन इज आइडियल करंट सोर्स एंड द प्रैक्टिकल करंट सोर्स. आइडियल और प्रैक्टिकल में बेसिक डिफरेंस क्या है, हम जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर द करंट सोर्स हम कंसीडर नहीं करते इन आइडियल करंट सोर्स. सो यहाँ पे देखो, और एक जो इंटरनल रेजिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं, इट इज ऑलवेज पैरेलल विद द करंट सोर्स. जो हमने वोल्टेज सोर्स का देखा था, इन वोल्टेज सोर्स आइडियल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स. ओके, तो करंट सोर्स के लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, इट विल बी इन अ पैरेलल. सो आइडियल करंट सोर्स के लिए हम इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं कंसीडर करेंगे. So that internal resistance we are calling it is a shunt resistance. Here it is not connected, so that means it is a infinite. So this is the symbol for the ideal current source. बाद में सपोज हमने एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, यहाँ पे तो इंटरनल रेजिस्टेंस दैट मीन्स RSS हमने लिया नहीं है, सिर्फ हमने लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया. तो इससे क्या होगा, जो टोटल करंट हमने दिया हुआ है सोर्स में, वो सारा करंट लोड में चला जाएगा. सो टोटल करंट विच इज flowing through the load, it is I itself. That means हम इनपुट में भी I दे रहे हैं और आउटपुट लोड से भी जो I करंट ही जा रहा है. सो सिंपली यहाँ पे करंट का डिफरेंस कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पे देखो, जो लोड करंट IL रहेगा, लोड करंट IL विल बी सेम एज दैट ऑफ द I. सो दिस इज द ग्राफ फॉर द आइडियल करंट सोर्स. और यहाँ पे हम एक कंडीशन यूज कर रहे हैं, RL इज इंक्रीज्ड. हम RL इंक्रीज कर रहे हैं. RL कितना भी इंक्रीज किया हमने, सो यहाँ से जाने वाला करंट जो रहेगा, लोड करंट, इट विल बी सेम. दैट मीन्स इट इज अ सोर्स करंट, दैट इज I, सो इट विल नॉट चेंज. सो देयरफॉर यू आर गेटिंग अ ग्राफ, इट इज अ स्ट्रेट लाइन. बाद में प्रैक्टिकल करंट सोर्स में हम क्या कर रहे हैं, जो शंट रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस, शंट इंटरनल रेजिस्टेंस RSS हम कंसीडर कर रहे हैं. सो दिस इज द सिंबल फॉर द प्रैक्टिकल करंट सोर्स. ये जो I करंट है, ये I करंट यहाँ से RSS से जाएगा. यहाँ पे हमने लोड कंसीडर नहीं किया है, लोड में रेजिस्टेंस हमने कंसीडर नहीं किया है. सो दिस द सिंबल फॉर द प्रैक्टिकल करंट सोर्स. अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो इंटरनल रेजिस्टेंस है RSS इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हमने लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है. तो यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल करंट I हम यहाँ पे दे रहे हैं, दैट मीन्स सोर्स करंट, ये सोर्स करंट यहाँ पे आ गया, एक करंट यहाँ पे जाएगा, एक करंट यहाँ पे जाएगा. सो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो यहाँ से जाने वाले करंट को हम क्या बोलेंगे, ISH, दैट मीन्स शंट करंट. और यहाँ से जो करंट जा रहा है IL, इट इज अ लोड करंट, क्योंकि वो लोड से जा रहा है. तो इसमें क्या हो रहा है, देखो यहां से तो शंट करंट जा रहा है और यहाँ पे लोड करंट जा रहा है. तो सम करंट यहाँ पे शंट में जाएगा और IL यहाँ पे जाएगा. मतलब जो टोटल करंट हम I सप्लाई कर रहे हैं, और टोटल करंट यहाँ से लोड से नहीं जा रहा. दैट मीन्स लोड से जाने वाला करंट IL इज लेस देन I, IL इज लेस देन I. सो और वन मोर थिंग, जब हम ग्राफ एक्सप्लेन करेंगे, ग्राफ एक्सप्लेन करते समय हमें जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस हमें इंक्रीज करना है. सपोज हमने लोड रेजिस्टेंस इंक्रीज किया, लोड रेजिस्टेंस इंक्रीज किया मतलब यहाँ से जाने वाला करंट डिक्रीज होगा. सो मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू द शंट रेजिस्टेंस. सो यहाँ पे देखो, सपोज हम RL इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे हम RL इंक्रीज कर रहे हैं. सो RL इंक्रीज किया मैंने, तो करंट विल डिक्रीज. सो यहाँ पे है, इट इज I लोड करंट, सो करंट विल डिक्रीज as you are increasing the current or as you are increasing the load resistance. Okay, so ये जो dotted line है, dotted line for an ideal current source, यहाँ पे हमने देखा था dotted line is for the ideal current source. This is the line for the ideal current source and this is the decaying graph for the practical current source. Ohm's law देखने के लिए हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पे देखो, it is the total voltage V, total voltage V we considered. And we have to measure the voltage between these two terminals. Suppose this terminal is X and this terminal is Y. X और Y में हमें voltage measure करना है, that means potential difference हमें measure करना है. So simply, and between these two terminals we connected one resistance. Okay. So see here statement क्या बोलता है, और यहाँ पे और एक condition, यहाँ पे हमने ammeter connect किया हुआ है. This is an ammeter for measuring the current and this is an voltmeter for measuring the voltage drop और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल X एंड Y. तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट क्या है ओम्स लॉ का. ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स. दैट मीन्स यहाँ पे X और Y हमने कंसीडर किया हुआ है. सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू देम
to the current flowing through them is equal to constant if the temperature is constant. That means the potential difference, suppose we are considering it as a V, so potential difference to the current flowing through them is equal to constant, is equal to constant, and that constant we are considering it is the resistance. So this constant is nothing but a resistance, and the unit for the resistance is ohm. So this is basically the statement for the Ohm's law. And one more thing, Ohm's law is applicable only to the linear network. It is not applicable to the non-linear networks. और एक नॉन-लिनियर टेक्निक, सर्किट सिंप्लीफिकेशन टेक्निक में हमें 3 टेक्निक्स देखने हैं. फर्स्ट वन इज सीरीज एंड बाय टेकिंग इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन of the resistances. Then second one is removing the redundant branches. Third one is to use the conversion technique such as delta to star or star to delta. इसमें पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और सीरीज सर्किट विच आर द रेजिस्टेंसेस इन अ सीरीज. सपोज यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हमें लिए हुए हैं. सो यहाँ पे देखो, जब इसका एक टर्मिनल इसको यहाँ पे सेकंड को कनेक्टेड है, इसका थर्ड को कनेक्टेड है, so it is a cascaded network. So series combination we are also calling it as a cascaded network or end-to-end connection. So this series combination of the resistances is connected across the total voltage V. So यहाँ पे और एक टर्म ध्यान में रखना है, when the resistance is in series, the current flowing through the resistances will be same. So the same current I will flow through all the resistances R1, R2 and R3. एंड यहाँ पे हमने कंसीडर किया हुआ है टोटल वोल्टेज इज V. सो द वोल्टेज ड्रॉप सपोज अक्रॉस R1 हम कंसीडर कर रहे हैं. सो द V1 इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 एंड द R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है सपोज हम कंसीडर कर रहे हैं इट इज अ V2. देन अक्रॉस R3 हम कंसीडर कर रहे हैं इट इज V3. सो दीज आर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1, R2 एंड R3. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल वोल्टेज V कंसीडर किया हुआ है. सो द टोटल वोल्टेज V विल बी द एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 रेजिस्टेंसेस. सो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस. एंड हमें पता है ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR. V इज इक्वल टू IR. तो हमें सपोज V1 निकालना है, तो V1 निकालने के लिए हम रेजिस्टेंस R1 कंसीडर करेंगे एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस इज I. सो यहाँ पे V1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा V1 इज इक्वल टू I1 into R1. Sorry, it is IR1 because current it is same. So V1 is equal to IR1. So यहाँ पे हम पुट करेंगे V1 is equal to I into R1. Then V2 is equal to I into R2 because R2 में से जाने वाला जो करंट है it is same, it is I and the resistance is R2. So I into R2 will be the V2 plus V3 is I into R3. तो यहाँ पे देखो I कॉमन है तो हम कॉमन लेंगे यहाँ पे I. So I into R1 plus R2 plus R3 is equal to the total voltage V. और एक टर्म हमें पता है, जो टोटल वोल्टेज V है, टोटल वोल्टेज V इज नथिंग बट द करंट इनटू द टोटल रेजिस्टेंस. सो ये जो वोल्टेज V है हम यहाँ पे पुट कर देंगे. सो इट इज I इंटू RP इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3. यहाँ पे I गेट कैंसिल, I कैंसिल हो जाएगा. तो हमें टोटल वोल्टेज रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3. यहाँ पे हम सिंपली RT को RS भी लिखेंगे. सो सिंपल हो जाएगा. RS S स्टैंड फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन. सो RS विल बी द R1 प्लस R2 प्लस R3. और RT लिखा, T लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम T भी लिख सकते हैं. इट इज अ टोटल रेजिस्टेंस. सो R1 प्लस R2 प्लस R3 विल बी द टोटल रेजिस्टेंस फॉर दिस नेटवर्क. और एक टर्म, सपोज हमने n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस सीरीज में कंसीडर किए, तो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम क्या फॉर्मूला क्या आ जाएगा. सो द टोटल रेजिस्टेंस फॉर द n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस R. So this will be the formula for the n number of resistances when we are considering in a series. Parallel circuits, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल. यहाँ पे हमने 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कंसीडर किए हुए हैं, R1, R2 एंड R3 इज इन पैरेलल. यहाँ पे पैरेलल कैसे देखो, हर एक का एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल को कनेक्टेड है. सपोज हमने ये एक रजिस्टर कंसीडर किया और ये दूसरा रजिस्टर है, तो एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है, एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है. सो इट इज कनेक्टिंग लाइक दिस. सो ये यहाँ पे देखो R1 R2 को कनेक्टेड है, R3 को भी कनेक्टेड है, R1 यहाँ पे R2 को कनेक्टेड है, R3 को भी कनेक्टेड है. सो इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो R1 R2 एंड R3 इज इन पैरेलल.
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों टर्मिनल, दिस ऑल द थ्री कॉम्बिनेशंस आर कनेक्टेड टू द वोल्टेज सोर्स. सो ये तीनों रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, दैट वोल्टेज विल बी सेम, बट द करंट विल बी डिफरेंट. बिकॉज यहाँ से जो टोटल करंट जा रहा है, तो सपोज हमने कंसिडर किया टोटल करंट इज IT, तो एक करंट यहाँ पे आ रहा है, एक करंट यहाँ पे जाएगा, एक करंट यहाँ पे जाएगा, एक करंट यहाँ पे जाएगा. सो टोटल करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3 ब्रांचेस में. टोटल करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3 ब्रांचेस में. सो सपोज हम कंसीडर करेंगे R1 से जो जाने वाला करंट है, सपोज इट इज I1, R2 से जाने वाला है, सपोज इट इज I2, एंड R3 से जो करंट जाएगा, सपोज इट इज I3. सो करंट आर डिफरेंट थ्रू ऑल 3 रेजिस्टेंसेस. सो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ करंट? सो द टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू IR, हम कंसीडर करते हैं V इज इक्वल टू IR. सो I इज इक्वल टू V अपॉन R हमें मिलेगा. अभी यहाँ पे देखो जो वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस इट इज सेम, इट इज अ V. सो I1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? I1 इज V डिवाइडेड बाय R1, V डिवाइडेड बाय R1. I2 is V divided by R2 and the I3 is V divided by R3. So and हमें और एक इक्वेशन पता है, दिस इज द टोटल करंट. सो टोटल करंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. सो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. सो यहाँ से राइट हैंड साइड से हम V कॉमन निकालेंगे. सो V, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा? इट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. It is equal to V upon RT. यहाँ पे अगेन V गेट कैंसिल, V कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. It is a final equation for the parallel combination. So 1 upon RT is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. सपोज हमने n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कंसीडर किए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस प्लस 1 अपॉन RN. और एक टर्म सपोज हम कंसीडर कि दो ही रजिस्टर पैरेलल में है. सपोज हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे दो रजिस्टर से पैरेलल में, R1 एंड R2 इज इन पैरेलल, तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, R1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, दोनों की एडिशन हो जाएगी डिवाइड पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. सो इट इज R1 R2. ये क्या है? 1 अपॉन RT इज इक्वल टू है. सपोज हमें RT निकालना होगा तो हम रेसिप्रोकल लेंगे दोनों का. सो RT इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? RT इज इक्वल टू इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे. सो इट इज R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. ये इक्वेशन है किसके लिए? जब हम दो रेजिस्टेंस पैरेलल पे कंसीडर करेंगे तब. सपोज हम कंसीडर करें कि जो दो रेजिस्टेंस है दे आर सेम. सो सेम रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? इट इज RT इज इक्वल टू, सो R1 एंड R2 हम सेम कंसीडर करें. सपोज इट इज R है, तो यहाँ पे R1 विल बी रिप्लेस बाय R, R2 विल बी रिप्लेस बाय अगेन R डिवाइडेड बाय R प्लस R. सो R इंटू R विल बी R स्क्वायर एंड R प्लस R इट इज 2R. सो 1R यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. सो इट इज इक्वल टू R अपॉन 2. सो यहाँ पे प्रूव क्या होता है? सो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R अपॉन 2. मतलब हम जब दो रेजिस्टर सेम कंसीडर करेंगे तब उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन उसका हाफ होगा. सपोज 2 and 2, सपोज यहाँ पे 2 ओम पैरेलल विथ 2 ओम है, सो उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा 1. सो द पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर द सेम रेजिस्टेंसेस इट इज हाफ ऑफ दैट रेजिस्टेंस. सो 2 and 2 रहेगा तो उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 ओम आ जाएगा. So depending upon the parallel and the series combination of a network, हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखेंगे. प्रॉब्लम क्या है? ऑब्टेन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B. A और B में हमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब सारे नेटवर्क का एक रेजिस्टेंस में हमें कन्वर्ट करना है. एक बात ध्यान में रखो, सपोज हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. सपोज बिटवीन A and B हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. सपोज इट इज RAB, तो उसके अपोजिट साइड से हमें रिड्यूस करने को स्टार्ट करना है. सो नेटवर्क रिड्यूस करना हमें उसके अपोजिट साइड से स्टार्ट करना है. तो यहाँ पे पहले देखो ये जो नेटवर्क है ये वाला, सो 2 and 2 इट इज इन पैरेलल, ये ऐसे कनेक्टेड है लाइक दिस. सो 2 ये टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है, ये टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है. सो 2 and 2 इज इन
पैरेलल। और मैंने बताया था व्हेन द टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल एंड इट इज सेम देन देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज हाफ। सो 2 पैरेलल विद 2 इट इज इक्वल टू 1 ओम वी आर गेटिंग। सो फाइनली दिस नेटवर्क हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? सो सिंपली दिस रेजिस्टेंस 5 ओम एज इट इज दिस। यहाँ पे ये भी देखो, ये दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, तो उसका सीरीज कॉम्बिनेशन ले लेते हैं हम यहाँ पे। सो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? इट इज 5 ओम, देन हियर इट इज अ 5 ओम, अगेन 5 ओम एज इट इज। यहाँ पे 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, इट इज 1 ओम, ठीक है, इन सीरीज विथ 4 ओम, तो यहाँ पे आ जाएगा इट इज 4 ओम। तो ये रिड्यूस नेटवर्क है आफ्टर द फर्स्ट स्टेप। और बाद में अभी यहाँ पे देखो 1 ओम एंड द 4 ओम इट इज आल्सो इन सीरीज। सो सीरीज कॉम्बिनेशन उसका आ जाएगा सिंपली द एडिशन। सो 4 + 1 इट इज 5। सो इसको मैं एक ही रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, बाद में एक एक्स्ट्रा फिगर ड्रॉ करना है, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करता हूँ। सो दिस 4 ओम विल बी रिप्लेस्ड एज 5 ओम। अभी यहाँ पे देखो दिस 5 एंड दिस 5 इज इन पैरेलल, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? 2.5, बिकॉज दिस टू रेजिस्टेंसेस आर सेम। सो 5 पैरेलल विथ 5 इज 2.5। सो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन 5 पैरेलल विथ 5 इज इक्वल टू 2.5 ओम हमें मिलेगा। सो इसका रिड्यूस नेटवर्क क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 5 ओम एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे 5 ओम, दिस 5 ओम एज इट इज, तो यहाँ पे ये 5 ओम एज इट इज आ जाएगा 5 ओम, और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा 2.5। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज 2.5 ओम। ओके, दिस इज द टर्मिनल ए एंड दिस टर्मिनल इज बी। नाउ यहाँ पे देखो ये 5 ओम एंड द 2.5 ओम इज इन पैरेलल। ओके, तो उनका हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। सो द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एंड 2.5 कैसे निकालेंगे? हमने फॉर्मूला देखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, व्हेन द टू रेजिस्टेंसेस इज इन पैरेलल। सो RT इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट इज 5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2.5। सो ये कैलकुलेशन होता है, इट इज 1.667 ओम। ओके, सो ये कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? 1.667 ओम। सो फिर से हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। दिस इज ए टर्मिनल, दिस 5 ओम रेजिस्टेंस as it is, then इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? इट इज 1.667 ओम। ओके, नाउ यहाँ पे देखो इन दोनों में से फ्लो होने वाला करंट सेम है, और एक टर्म ध्यान में रखना, व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंसेस इट इज सेम देन दैट रेजिस्टेंसेस विल बी इन सीरीज। सो ये 5 ओम एंड 1.667 ओम विल बी इन सीरीज। सो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा फाइनल, सो देयरफॉर RAB is equal to 5 plus 1.667। सो इनकी एडिशन क्या आ जाएगी? इट इज 6.667 ओम। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A and B is 6.667।